Hi friends, the topic of the video is male-female ratio or gender distribution of population in India. We also call it sex ratio in India. So, what is male-female ratio? See, male-female ratio in terms of population is counted per 1000 males. Usually, sex ratio, male-female ratio is considered on the basis of per 1000 male. How many females are there per 1000 male in population is called male-female ratio or sex ratio or gender distribution of population in any territory or country. So, if we look at India's population and we classify male and female population, we find that there is an imbalance between male-female ratio. Right? Male-female ratio में यानी पुरुष और महिलाओं की जो आबादी है उसमें असंतुलन है, imbalance है, right? And it is proved by these figures, and these figures are based on census that is conducted every 10 years in India. Except this last 2020 figures are estimates because next census is due in 2021, very shortly. So, as per 1951 census in India, male population in terms of crores, out of the total population of 36 crores, there were 18.55 crores. That means 18 crore 55 lakh. Male population was there out of total 36 crores India's population. Compared to this, female population was less and it was 56 crores. If we convert it into percentage, out of 100% population, 51.37% population was that of male and 48.63% population was that of females. That proves that ever since independence, ever since the beginning of free independence era, we have been facing the problem of male-female ratio imbalance. But the more important aspect is that it has gone worsening. ये जो असंतुलन है वो और बिगड़ता गया है और वही हमारी कंसर्न होनी चाहिए और है. आगे चलें. 1991 में 40 इयर्स जंप करते हैं तो 1991 में जो सेंसस हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन रोज टू 84.63 करोड़ इन टोटल. आउट ऑफ दिस 43.92, that means almost 44 crores were male population, and compared to that 40.71 crore population was that of females. That means again the difference between male-female imbalance rose. See, here it is 51.37, now it rose to 51.90. यानी मर्दों की आबादी पुरुषों की आबादी महिलाओं के कंपैरिजन में और बढ़ी. और यहां आप देखें 48.63% महिलाओं की आबादी हुआ करती थी 1951 में, वो 40 साल बाद जो है और रिड्यूस हुई और 48.10 पर आई. यानी नंबर ऑफ फीमेल्स का आबादी में घटना चालू रहा. टू बी टेकन नोट ऑफ. नंबर नेक्स्ट 2011 के सेंसस में अगर हम और 20 साल जंप करके देखें तो ये 51.54% मेल पॉपुलेशन हुआ. यानी मार्जिनल रिडक्शन आया मेल पॉपुलेशन में और मार्जिनल इंक्रीज आया परसेंटेज में फीमेल पॉपुलेशन में. ये 48.10 के 48.46 हुए, थोड़ा सुधार आया, लेकिन अभी भी इम्बैलेंस चालू है. एंड 2020 की जो एस्टिमेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारी जो टोटल मेल पॉपुलेशन है वो वापिस राइज हुई 51.54 के 51.8% हुए रफली. एग्जैक्ट फिगर है हमको वेरी शॉर्टली 21 के सेंसस में मिलेगी. ये एस्टिमेट्स हैं. एंड अगेन
फीमेल पॉपुलेशन जो है 48.1 की 48.2, मार्जिनल थोड़ा इंक्रीज उसमें भी है, मेल पॉपुलेशन में भी इंक्रीज है. And this table proves two things. Number one, number of increase in males and female both is on the rise sharply during the given period. ये जो हमने 70 years का पीरियड लिया, नियरली 51 to 20, 70 years के पीरियड में number of males and number of females both are increasing alarmingly in population, resulting into high population rise in the country. Number one. Number two, if we look at जेंडर इनइक्वालिटी, अगर हम जो है मेल फीमेल यानी कि पुरुष और महिलाओं के असंतुलन की बात करें तो ये असंतुलन और जो है सीरियस हुआ है, खराब हुआ है, बिगड़ा है. यानी कि नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज ऑन द राइज रफली एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन, राइट, एंड द रेशियो इज गेटिंग मोर इम्बैलेंस्ड. ये कंक्लूजन इससे निकलता है. अब अगर हम स्टेट वाइज बात करें, इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उसमें आप जान के हैरान होंगे कि केरला इज द ओनली एक्सेप्शन इन इंडिया. केरला स्टेट इज द स्टेट हैविंग ओनली एक्सेप्शन इन इंडिया वेयर नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ मेल्स, यानी सेक्स रेशियो इज मोर, राइट. द एग्जैक्ट फिगर्स आर that in Kerala, as per the 2011 last census, which was conducted in India, official census, 1,084 females were found in population of Kerala compared to 1,000 males. Can there be any correlation between Kerala's literacy level and this higher sex ratio? 100%. केरला में लिटरेसी भी 100% है, और जहां लिटरेसी बढ़ेगी सेक्स रेशियो इंप्रूव होना है. बहुत सारी चीजें इंप्रूव होनी है, उसमें से एक है सेक्स रेशियो. एक्सेप्ट केरला, इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज इम्बैलेंस. सेक्स रेशियो इज लोअर, नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेस, नंबर ऑफ मेल्स आर मोर, राइट. एंड हरियाणा इज द वर्स्ट. केरला इज हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो. लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है, जेंडर इनइक्वालिटी है हाईएस्ट, वो हरियाणा में है. हरियाणा में इन 2011 सेंसस only 879 females were found per 1,000 males in Haryana. And you will note that पहले ये कंक्लूड कर लें कि हमारे पास यहाँ अगेन 60 years की फिगर्स हैं स्टेट वाइज, नंबर ऑफ मेल फीमेल की. तो उससे भी हमें कंक्लूजन मिलेगा आइडिया कि इंडिया में, दिस इज इंडिया लेवल नंबर ऑफ फीमेल फिगर्स पर 1,000 मेल्स, दिस इज गुजरात लेवल नंबर ऑफ फीमेल फिगर्स पर 1,000 मेल्स. In 1901, 972 females were there per 1,000 males in India. Now, if we go on moving, this is 111 years figures. 1901 to 2011, it is almost 110 years figures. 110 साल की ये फिगर है. 110 साल में क्या चेंज आया वो देखो आप, कि नंबर ऑफ फीमेल्स per 1,000 males are on the decline. 972, 950, 941, 927, marginal increase of 933 and 950, 940. यहां से marginal increase है लास्ट दो सेंसस में. बाकी on an average it is on the decline. यानी number of females are on the decline per 1,000 males population in India on an average. अगर गुजरात स्टेट की बात करें, the state to which we belong here is that in Gujarat, we find that number of females were even lesser than Indian average. India में 972 on an average per 1,000 males female हुआ करती थी. गुजरात में only 954 हुआ करती थी. 1901 की बात है, 110 साल पहले. और ये रेशियो और खराब हो रहा है. आप देखें 954, 45, 40, 36, 21 and see the seriousness, 1918 only, right. अब इसीलिए अब इंडिया लेवल पर एक और कंक्लूजन ये निकला कि पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात जैसे जो प्रॉस्परस इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें ये जेंडर इनइक्वालिटी का जो रेशियो है वो और इम्बैलेंस हुआ है और हो रहा है. उसके दो रीजन एक्सपर्ट्स मानते हैं. नंबर वन, preference for male child in the family.
preference for a boy child in the family is reason number 1. एक्सपर्ट से, डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स एक रीजन ये बताते हैं. एंड नंबर 2, दूसरा रीजन, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ उसका हम मिसयूज हो रहा है, और जितने प्रॉस्परस स्टेट्स होंगे उसका उतना मिसयूज वहां ज्यादा होगा. और उसमें वो फीमेल फोएटिसाइड्स का जो एक प्रॉब्लम है, राइट, अगर सोनोग्राफी से पता चले कि द बेबी ग्रोइंग इन द मदर्स वूम्ब is a girl child, then the couple or family used to get the child aborted. पैदा होने से पहले ही लड़की को मार दिया जाए. Remember, this has been made illegal by passing a law in the parliament in India. But law enforcement problems are there. Of course, government is trying to enforce it as strictly as possible. लेकिन अभी रिजल्ट्स आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा उसका. तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये निकला है इसमें पूरी बात में, पूरे ये जो मेल फीमेल रेशियो के ये 10-15 मिनट 10-12 मिनट का वीडियो है उसमें, कि इन इंडिया मेल फीमेल रेशियो इम्बैलेंस, पुरुष और महिलाओं की आबादी में जो रेशियो है उसका जो असंतुलन है वो इंडिया में एक प्रॉब्लम का प्रोपोर्शन एज्यूम कर रहा है, किया है उसने. और अब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चिल्लाना चालू किया है, बोलना चालू किया है, उसकी अवेयरनेस कंट्री ला रही है, और होपफुली उसके रिजल्ट्स आने वाले वक्त में हमें मिलेंगे. एंड इसे हम प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं, मेल फीमेल रेशियो या सेक्स रेशियो का लो होना या मेल फीमेल रेशियो का इम्बैलेंस होना, इसमें असंतुलन होना, इसको प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि उसके इकोनॉमिक और सोशियो इम्प्लीकेशंस सीरियस हो सकते हैं. Male-female ratio imbalance leads to imbalanced society. Okay.